The first topic that we start out in level 2 is called quantitative techniques, and there are 7 learning modules that we cover here with you. The first 4 learning modules focus on multiple regression analysis. In CFA level 1, you spoke about the topic on simple linear regression. The last chapter in quant was simple linear regression. We'll give you an introduction to that topic area. We'll do a few regressions in class here and help you understand how regressions are done and how they are interpreted. You will not be asked to run any regressions in your CFA exam, but you will obviously require to interpret the results. If you can interpret the results of regression, you are good. Okay. So let's start with the basics. So why are we studying quant in the CFA program? Quant is not math. Quant is statistics. As you would have probably realized in CFA level 1, barring the first chapter that you cover, which is time value of money, from there onwards you all do statistics. Statistics is we are trying to understand and formulate relationships between variables. We want to quantify the relationships and find out what is the impact of this variable on this. क्योंकि हमारा काम क्या है एज एन एनालिस्ट, हम फोरकास्ट करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, ताकि कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हमें पता है कि अगर यहाँ पर ये हो रहा है तो उसको हम इससे फोरकास्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है. And if we can position our portfolios in a certain manner, knowing that if this is happening, the chance of this happening is more, automatically the chance of making money is higher. So the idea is to help us form and understand and quantify relationships. One of the ways to look at that is to form regressions. What are regressions? Regressions are equations where we try to explain the relationship of x on y. We are trying to explain how x explains y. This equation that I have written is the equation of a line. Y is called as the dependent variable. X is called the independent variable. B0 is the intercept. B1 is the slope. This is the error part term of the equation. Okay? So you have these variables in the entire data set. Okay? Now, this entire equation is broken down into 2 parts. Yes, this entire equation is broken down into 2 parts. Yes. So this part of the equation is the explained part. And this part is the random part or the unexplained. So you can say basically the variations in y, the changes in y will be broken down into 2 parts. The explained variation and the unexplained variation. In the context of portfolio management, we used to name them as systematic risk and unsystematic risk. Systematic risk which can be captured, explained, and unsystematic which we can't explain, which is company specific, idiosyncratic. वैसे ही क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में यहाँ पर हम वेरिएबल y के जो चेंजेस होंगे, जो डेल्टा y है, डेल्टा y को हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन में. एक्सप्लेन्ड वेरिएशन जो ये कैप्चर कर रहा है और जो अनएक्सप्लेन्ड पोर्शन वो ये कैप्चर कर रहा है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ठीक है. सो रिग्रेशन का काम क्या है? रिग्रेशन का काम है ये जानना कि आपका जो वेरिएबल y है इसमें चेंजेस क्यों आ रहे हैं. वेरिएशन इन y को लिखते कैसे हैं? वेरिएशन y is written as y minus y bar whole square.
नोटिस करिए मैंने क्या बोला, वेरिएशन इन y, वेरिएशन इन y, वेरिएंस ऑफ y. What is the formula of variance? x minus x bar whole square upon n minus 1. है ना. आप डिनोमिनेटर हटा दीजिए एक सेकंड के लिए. डिनोमिनेटर में तो स्केलिंग होती है, बट न्यूमरेटर क्या बचा, x minus x bar whole square. तो वही आपका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, y minus y bar. तो y minus y bar is the variation in y. This is called as the total variance. इस total variance को हम किस में तोड़ेंगे, दो हिस्सों में, explained variation and the unexplained variation. y को समझाने के लिए जब हम x की वैल्यू डालते हैं इक्वेशन में और फिर y की वैल्यू निकालते हैं, उसको कहा जाता है y hat. तो आपको जानना है, यहां पे हमने तीन चीजें लिखी हैं. There are three things that we have written. First is yi, y hat and y bar. You need to understand the difference between these three. What is yi? Actual. The actual value of y. This is the actual value. This is the actual value of y. क्या ऑब्जर्व किया गया, क्या देखा गया रियल वर्ल्ड में, ये क्या है, Predicted value. एस्टिमेटेड वैल्यू. ठीक है, दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y गिवन द वैल्यू ऑफ x. और यू कैन यूज, आपने जैसे वर्ड किया, वर्ड प्रिडिक्टेड. दिस इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y. ठीक है, और ये तो आपको पता है क्या है, Average. दिस इज द मीन, दिस इज द एवरेज, है ना. सो ये आपके तीन वेरिएबल्स हैं. अब अगर हम कहें कि y माइनस y बार होल स्क्वायर, अगर ये टोटल है तो एक्सप्लेन्ड क्या होगा और अनएक्सप्लेन्ड क्या होगा. एक्सप्लेन्ड का जो वेरिएशन होगा दैट विल बी y हैट माइनस y बार, क्योंकि टोटल वेरिएशन में से कितना वेरिएशन समझा दिया गया, y बार से लेके जितना एस्टिमेटेड वैल्यू तक थी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स से आपकी ये लाइन है, ठीक है, लेट्स ड्रॉ अगेन. लेट्स से दिस इज द एक्सेस, ये डेटा है, ठीक है, लॉट्स ऑफ डेटा इज हियर. अब डेटा में लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये रिग्रेशन लाइन बन रही है, ठीक है. एक ये डेटा पॉइंट है, यहां पर इस डेटा पॉइंट की बात करते हैं और ये मान लेते हैं y बार है, ठीक है. ये डेटा पॉइंट है आपका, इसको यहां पे से कर लेते हैं. सो ये डेटा पॉइंट है, ये y बार है. ये जो डिविएशन है, ये टोटल डिविएशन है. यस, दिस इज द टोटल डिविएशन. ये y बार है. यहां पर एक्चुअल, यहां पे आपकी एक्चुअल वैल्यू है. ये सॉरी, ये दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू. यहां पे एक्चुअल जगह, इसको डिस्टेंस कर लेते हैं. तो ये आपकी y है, दिस इज y बार, और ये आपका सॉरी ये y, दिस इज द y हैट, सॉरी दिस इज द y हैट, दिस इज द y बार. ठीक है, तो टोटल डिविएशन ये है, दिस इज द टोटल डिविएशन. इस टोटल डिविएशन में इतना पार्ट एक्सप्लेन्ड है और इतना पार्ट अनएक्सप्लेन्ड है. मैं इसको, आई विल शो यू अ बेटर डायग्राम. लेट मी सी, आई विल शो यू अ बेटर डायग्राम. One more. You can shift this side. It will be easier for you, because then I'm right in front of you. So let me pull out another page. Give me a moment. I'll pull out a page and I'll show that to you. Give me a moment. Yes, this is the diagram I wanted to show you. So have a look at this diagram. In this diagram, look at, this is the total variation. From this point till this point is the total. Yes, this is the total variation, y minus y bar. ठीक है, यहां से यहां तक is the explained portion and यहां से यहां तक is the error portion, जो आप समझा नहीं पाए. सो आपके डेटा में आप इस वेरिएशन को समझाना चाह रहे हैं कि वैल्यू जो है y बार से क्यों डिफरेंट आ रही है. इस डिविएशन को x ने जब समझाया तो x की वजह से आपका एस्टिमेट ये निकला. तो टोटल डिविएशन में से ये पार्ट ऑफ द डिविएशन जो है वो है
एक्सप्लेन्ड पोर्शन, और ये पार्ट जो है वो है अनएक्सप्लेन्ड पोर्शन। ठीक है, अब ऐसे ही हर एक डेटा पॉइंट के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर एवरी सिंगल डेटा पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस डेटा पॉइंट के लिए तो आसान है, इस डेटा पॉइंट के लिए देखें। यस, इस डेटा पॉइंट में ये y बार है, ये आपका y हैट है और ये एक्चुअल वैल्यू है, तो ये अनएक्सप्लेन्ड पोर्शन हो गया, ये आपका एक्सप्लेन पोर्शन हो गया। तो ऐसे ही हर डेटा पॉइंट का कुछ एक्सप्लेन पोर्शन होगा, कुछ अनएक्सप्लेन पोर्शन होगा। हम लोग क्या करते हैं, so if you think about it, what is the numbers? So this is more mathematical now. yi minus y bar, this is the total deviation, correct? This is being broken into two parts. Y hat minus y bar, this is the explained portion. And what is the unexplained? Just logically think about कि unexplained किसको कहते हैं? आपके एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस होगा। एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू, आपने क्या सोचा और क्या आया, इसमें जो डिफरेंस है वही गलती है ना? फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल वैल्यू ये आई, बट आपने एस्टिमेट उसको ये किया था, दिस इज द एरर पोर्शन, करेक्ट? तो ये इनको हम लोग स्क्वायर करके ऐड करते हैं। So estimated and दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू, yes, the actual value, this is the estimated value and this is the mean value. ठीक है, the actual value and the mean value का difference is the total variation. Your estimated value and the mean value का difference is your explained variation. The actual value minus the estimated value is the error portion. I understood, but on the graph, how do डजंट मैटर, ग्राफ में आपको नहीं करना है, वो ग्राफ में सिर्फ एक्सप्लेनेशन का पार्ट था, आपको मैथमेटिकली समझना है। ठीक है, वंस यू अंडरस्टूड दिस, आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज सारा आपको एक्सेल कैलकुलेट करके देगा, आउटपुट आपको दिया जाएगा, आपको सिर्फ इंटरप्रेट करना है। ठीक है, याद रखिएगा, इन सबको हम स्क्वायर करके फिर ऐड करते हैं। ठीक है, इनको स्क्वायर करके ऐड किया जाता है, that is called as sum of squares. तो sum of squares किस किस तरीके का है? You have the regression sum of squares. Yes, this is this is the total sum of squares. This is the regression sum of squares, and this is the sum of squares error. So total sum of squares is nothing but the numerator of your variance. Variance का जो न्यूमरेटर होता है, उस टोटल वेरिएंस को आप दो हिस्सों में तोड़ते हैं कि कितना वेरिएंस एक्सप्लेन हो चुका है और कितना वेरिएंस एक्सप्लेन नहीं हुआ है। जो वेरिएंस एक्सप्लेन हो गया है उसको कहते हैं रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स, और जो वेरिएंस एक्सप्लेन नहीं हुआ है उसको कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स एरर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ही मिलेगा, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका रिग्रेशंस का। ठीक है, सो रिग्रेशंस सीएफए लेवल 2 में मल्टीपल रिग्रेशन रन की जाती है। मल्टीपल रिग्रेशन का मतलब है कि हमारे पास राइट हैंड साइड पर एक नहीं मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। सो ऑन द राइट हैंड साइड आई विल नॉट हैव वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट आई विल हैव मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1, x2, x3, x4। देखो क्या फर्क होता है, अगर मेरे इक्वेशन में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस इक्वेशन का आसानी से दो एक्सिस में डायग्राम बन सकता है, बट जब इतने सारे वेरिएबल्स होंगे तो डायग्राम कैसे बनेगा? तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का चैप्टर अलग और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का चैप्टर अलग क्यों है? बिकॉज सिंपल लीनियर रिग्रेशन में डायग्राम्स बनते हैं, बट द मिनट यू अराइव एट लेवल 2 डायग्राम नहीं बनते, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल इक्वेशन हो गई। अब सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन से काम कर सकते हैं। तो आपको इक्वेशंस और ग्राफ में समझाने के लिए
सिंपल लीनियर रिग्रेशन का चैप्टर लेवल 1 में, और उसी चीज को आपने मैथमेटिकली अब करना है तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस का चैप्टर। ठीक है, अब ग्राफ नहीं आएगा, ग्राफ आएगा तो पूरी इक्वेशन का एक ग्राफ आएगा जिसमें सारे वेरिएबल्स एक साथ होंगे एक साइड पर। मल्टी डायमेंशनल ग्राफ बनेगा इसका, एक्स वाई जेड एक्सिस, चौथा एक्सिस, मतलब ये तो इतनी सारी एक्सिस होंगी कि इसका डायग्राम देखना सोचना कॉन्सेप्चुअली आसान नहीं होगा, है ना। इट विल बी लाइक अ 7D डायग्राम, राइट। So multiple regression is a linear regression analysis with more than one independent variable. That is how two or more variables explain the movements of the dependent variable. The dependent variable is on the left hand side. B0 is the intercept. B1, B2, B3 are the slope coefficients, and x1, x2, x3, xk are the independent variables. And error E is the error term. The goal of the regression is to explain the variation in the dependent variable y using the variations in the x1, x2, x3. तो x1, x2, x3 से आप explain करना चाहते हैं कि y पे क्या impact आ रहा है। B1 क्या होता है? What is B1? Slope. थोड़ा और बताएं इसके बारे में। What is B1? So 1 unit change in x1, the value होगा b1. So can I say it is delta y upon delta x1 is equal to b1? क्या मतलब है इसका? कि अगर x को एक यूनिट से चेंज किया जाए तो y पे क्या इंपैक्ट आएगा? कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट। तो ceteris paribus, keeping everything else constant, अगर आप x2, x3, x4, xk को चेंज ना करें, बट अगर सिर्फ x1 को एक यूनिट से बढ़ा दें, तो what will be the impact on b, or what will be the impact on y? What is the formula of b1? b1 का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है, आपने किया हुआ है लेवल 1, इसके बिना पास हो ही नहीं सकता। मैं लिखता हूं फॉर्मूला, उसके बाद आप बात करेंगे। सो इट इज दी, आई राइट इट हियर। द फॉर्मूला ऑफ B1 इज द कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय द वेरियंस ऑफ x। वेरी नाइस। किसका फॉर्मूला है ये बीटा का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला आपने बीटा का फॉर्मूला किया था, तो जो बीटा का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला B1 का भी है। बिकॉज बीटा क्या है? बीटा भी तो आपका रिग्रेशन लाइन का स्लोप है, जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मार्केट का रिटर्न है और डिपेंडेंट वेरिएबल स्टॉक का रिटर्न है। यही तो इक्वेशन थी, रिटर्न ऑन द स्टॉक इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑन मार्केट प्लस द एरर टर्म। यही तो CAPM मॉडल का इक्वेशन है। RF माइनस कर भी लेंगे तो उससे कोई स्लोप तो फर्क नहीं पड़ेगी। अगर एक कांस्टेंट को आप RM से माइनस कर भी लेंगे तो विल दैट अफेक्ट द स्लोप? नो, इट विल नॉट अफेक्ट द स्लोप। तो ये फॉर्मूला, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, इसको पता है क्या कहते हैं? इस इक्वेशन को, इसको कहते हैं मार्केट मॉडल। ये CAPM को रन करने के लिए, CAPM को रिग्रेशन में रन करने के लिए ये मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे राइट हैंड साइड पर आपने इसको इंडेक्स का रिटर्न बना दिया और इसको आपने स्टॉक का रिटर्न बना दिया, तो तब जो स्लोप मिलेगा, ये जो स्लोप कैलकुलेट होगा, ये बीटा होगा। ठीक है, तो यही चीज जो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में करते हैं, अगर आपको बीटा का फॉर्मूला पता है, जो आके मालूम है, मैंने कहा ना बीटा का फॉर्मूला जाने बिना आप लेवल 1 पास नहीं कर सकते। तो अगर आपको बीटा पता है तो आपको B1 का भी फॉर्मूला मालूम है। अच्छा, एक और चीज है, नोटिस करिए B1 का फॉर्मूला एक और फॉर्मूले से बड़ा मिलता जुलता है, कोरिलेशन। क्या फॉर्मूला है? कोवेरियंस ऑफ XY डिवाइड बाय सिग्मा x एंड सिग्मा y। नोटिस करिए कि B1 और कोरिलेशन बड़े एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर सेम है
और दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दोनों का मतलब साइन भी सेम होगा, क्योंकि साइन न्यूमरेटर डिसाइड करता है। कोवेरियंस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब है कोरिलेशन और बीटा एक जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनकी स्केलिंग अलग तरीके से की जाती है। कोरिलेशन का तो रेंज होता है -1 to +1 तक रेंज करता है, बट ये दिस कैन टेक एनी वैल्यू, क्योंकि कोवेरियंस को भी नंबर हो सकता है। इनका फर्क क्या होता है? कोरिलेशन मेजर करता है व्हाट इज द स्ट्रेंथ, correlation measures the strength of the relationship, and beta B1 measures the magnitude. बताइए, अगर मैं बोलूं कोरिलेशन +1 है, तो क्या आप बता सकते हैं कि जब x में 1 चेंज आएगा तो y में कितना आएगा? नहीं। कैसे बता सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते। सेम डायरेक्शन में आएगा, मैग्नीट्यूड क्या इंपैक्ट होगा ये नहीं बता सकते। इसको चेक करने के लिए आपको B1 की वैल्यू चाहिए, बिकॉज B1 क्या है? B1 इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एग्जाम्पल देते हैं, चलिए देखिए। अगर एक इक्वेशन है y इक्वल टू 3 + 2x और सारे डेटा पॉइंट्स लाइन पे फॉल करते हैं, अगर डेटा का कोरिलेशन +1 है, इसका मतलब द रिलेशनशिप इज परफेक्ट पॉजिटिव। बट अगर x में 1 चेंज आता है तो y में कितना चेंज आएगा? 2। अगर ये नंबर 2 की जगह 20 होता तो 20 का चेंज आता। तो B1 क्या बताता है? मैग्नीट्यूड, कि भाई x से y पे कितना इंपैक्ट आता है। और कोरिलेशन क्या बताता है? दोनों का स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज करें दोनों का डिफरेंस। कोरिलेशन स्ट्रेंथ बताता है और आपका B1 मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, क्या ये नंबर बड़ा है या छोटा है, इसको जज करने के लिए आपको इस नंबर का टी स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना पड़ता है। किसी भी नंबर को बड़ा छोटा जज करने के लिए हमेशा अपने स्टैंडर्ड एरर के रेफरेंस में चेक करना पड़ता है, क्योंकि आपको चेक करना पड़ता है कि भाई इस डेटा में एरर कितना आता है। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? स्टैंडर्ड एरर होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत है, राइट, अगर ये इतना स्टैंडर्ड डिविएशन है एज कंपेयर टू इतना स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो बड़ा नंबर भी बड़े स्टैंडर्ड डिविएशन में छोटा नजर आएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है एवरेज एरर। एवरेज एरर, आपको यह याद रखना है कि आप सैंपल डेटा के साथ काम कर रहे हैं। क्या सैंपल पे भरोसा किया जा सकता है? जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने कहा क्वांट में लोगों के नंबर कम आए, क्या वो पॉसिबल है? सबके नंबर तो कम आ नहीं सकते, राइट? इट हैज टू बी अ सैंपल साइज इशू, सो आई आस्क्ड व्हाट इज अ सैंपल। बट माय पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप क्या सैंपल के डेटा पे रिलाय कर सकते हैं? आप तभी रिलाय कर सकते हैं कि जब नंबर अपने एरर्स में छोटा एरर ना हो, बड़ा एरर हो। इट शुड लाई आउटसाइड अ सर्टेन रेंज, then it is a reliable figure, otherwise it is not a reliable figure. So for your data to be reliable, it must be a big error. So how do you judge? You calculate the t statistic. And how is the t statistic calculated? Observation minus the hypothesized value divided by the standard error. अगर ये t statistic comes out to be big, if this value comes out to be larger than the critical value, it is significant, it is relevant, it is important, and you reject the null hypothesis. ठीक है? तो null hypothesis को reject करने के लिए, किसी वेरिएबल को significant प्रूव करने के लिए, किसी x को important प्रूव करने के लिए relationship strong होना जरूरी है. Yes, the pun is intended. You can think of this. If the x is relevant, for the x to be relevant, the magnitude impact must be big. Yes, many x's might be relevant, but the x that is relevant, the magnitude impact, the test statistic
has to be important and larger than the critical value. Only if the test statistic is larger than the critical value, only then it is relevant, otherwise it is not relevant. You can ignore it. And we reject. And we reject. Yes? Sir, Yes. in level 1 you said something like if covariance is positive, then if x is above the mean, then that means that y is also Correct. Absolutely. कोवेरियंस या कोरिलेशन का पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है? What is the meaning that the covariance is positive? चलो उसको एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है? This is the range of values of x. This is the range of values of y. ठीक है? This is their respective means. ये दोनों के अपने अपने means हैं. What is covariance? Covariance is x minus x bar. Yes, covariance is equal to x minus x bar into y minus y bar. यही है. तो x अगर अपने मीन से ऊपर जाता है तो y अपने मीन से ऊपर गया. अगर x अपने मीन से इस तरफ गया और y भी अपने मीन से इधर गया, x अपने मीन से इस डायरेक्शन में गया और y भी अपने डायरेक्शन में इधर गया, तो क्या लग रहा है आपको? दोनों का रिलेशनशिप अपने मीन के रेफरेंस में पॉजिटिव है. ठीक है? तो आप इसको डायरेक्शनली समझिए, कॉन्सेप्चुअली समझिए कि कोवेरियंस होता क्या है. कोवेरियंस का मतलब है हाउ आर दे वेरिंग रिस्पेक्टिव टू देयर रिस्पेक्टिव मीन्स. अपने मीन के रेफरेंस पॉइंट से वो कहां घूम रहे हैं. जब x में कोई चेंज आया और y में भी अगर सेम डायरेक्शन में चेंज आया तो हाँ रिलेशनशिप पॉजिटिव है. ठीक है? दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेरियंस इन योर माइंड दैट यू कैन थिंक ऑफ. और कोवेरियंस और कोरिलेशन सेम कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ स्टैंडर्डाइज होते हैं और कुछ नहीं है. तो जो मैंने डायग्राम बनाया यही डायग्राम कोरिलेशन के लिए भी सही है. But sir, we can say that correlation is a second step to go. करेक्ट. कोरिलेशन इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर. कोवेरियंस से आप वेरिएबल्स का स्ट्रेंथ नहीं जान सकते. आप डायरेक्शन जान सकते हैं. कोवेरियंस आपको सिर्फ डायरेक्शन देता है. कोरिलेशन डायरेक्शन भी देता है और स्ट्रेंथ भी देता है. क्यों? बिकॉज कोवेरियंस रेंज बाउंड नहीं होता. कोवेरियंस रेंज बाउंड नहीं होता. रेंज बाउंड नहीं होता मतलब कोवेरियंस का जो नंबर है, अगर मैं बोलूं कोवेरियंस इज 45, इज इट बिग और स्मॉल? आई डोंट नो, बिकॉज कोवेरियंस की रेंज प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी है. सो आई डोंट नो इफ इट्स बिग और नॉट. बट जैसे हम कोरिलेशन निकालते हैं तो एक रेंज बाउंड नंबर हो जाता है. इट स्टेज बिटवीन प्लस एंड माइनस 1. तो मुझे मालूम है कि अगर वो 1 के पास है इधर वे, तो अपने मैक्सिमम लिमिट के पास है. तो इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ तेज हो गई है. You can say it is a standardized measure. It's like for example, अब मैं बोलूं कि अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट में अलग अलग स्केल्स होते हैं. आपको स्केलिंग करनी पड़ती है ना मेजर करने के लिए, क्योंकि वो हाई है लो है, राइट? तो स्केलिंग का मतलब होता है आपने उसको एक रेंज बाउंड बना दिया है. ठीक है? अब आप उसको मेजर कर रहे हो स्केल की बेसिस पे. दैट इज हाउ इट इज डन. हर सिचुएशन का स्केल अलग होता है. बट कोरिलेशन का स्केल जो होता है प्लस एंड माइनस 1 के रेंज में होता है. ठीक है? दैट इज हाउ इट वर्क्स. Correlation comes out to be 0.4. That means that 40% is explained, 60%. नो. कोरिलेशन को हम ऐसे इंटरप्रेट नहीं करते हैं. What percentage is explained is called as a concept called as R square. What is R square? R square is correlation square. तो जब कोरिलेशन को स्क्वायर कर दिया जाता है तो उसको R square कहते हैं. And what is R square? You asked for. It is the percentage of the variation in y that has been explained by x. So the value comes out to be like 0.47, and whether we want to know if it is significant or not. क्या? R square. Yeah, correlation. कोरिलेशन. Then उसके we- लिए अलग से टेस्ट. टेस्ट. For 0. हाँ जी. हर चीज का टेस्ट है. आपको हर चीज को अगर प्रूफ करना है कि ये इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, रेलेवेंट है कि नहीं, उस चीज का टेस्ट करना पड़ेगा. जैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं हम. अगर मैं बोलूं कि हीमोग्लोबिन 12 है, बड़ा है या कम है, मुझे कैसे पता? जब तक मैं एक स्केल के रेफरेंस पॉइंट में चेक नहीं करूंगा. अगर मैं बोलूं क्रेटिनिन 0.2 है तो उसको स्केल में रेफरेंस में चेक करना पड़ेगा.
बीपी बोलो अगर इतना है, मतलब हर चीज का अपना अपना स्केल है, उस स्केल के रेफरेंस पॉइंट पे चेक करना पड़ता है, और उस स्केल का रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए क्या है? टी स्टेटिस्टिक। वैसे टी है, वैसे एफ है, काय है, बहुत सारे टेस्ट आएंगे आपके लेवल 2 में, हर चीज का टेस्ट है, उस टेस्ट को आप चेक करेंगे कि क्या ये नंबर अपने स्केल से बाहर है, अपने स्केल के अंदर है। ठीक है, ऑलराइट। So the goal of multiple regression is to explain the variation in the dependent variable y using the variations in the independent variables x1, x2, x3. The variations in y, which is y minus y bar, which we refer to as the sum of squares total. Terms having k independent variables are the deterministic part. ये जो part है, इस part of the equation को क्या कहते हैं? इस part को कहते हैं deterministic part. So terms involving the k independent variables are the deterministic part of the model, whereas the error term is the stochastic part of the term. Stochastic क्या हुआ? Random part. Stochastic is the random part of the model. The model is estimated over n observations, where n must be larger than k. तो आपके मॉडल को रन करने के लिए आपके डेटा में सैंपल साइज should be larger than the number of independent variables. Otherwise रिग्रेशन नहीं रन कर पाएंगे। तो रिग्रेशन रन करने के लिए एक चीज ज्यादा जरूरी है, क्या? कि सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से ज्यादा। ऐसा ना हो कि आपके पास 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और सैंपल साइज 3 है, तो रिग्रेशन भी रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो मॉडल इज एस्टिमेटेड ओवर n ऑब्जर्वेशंस वेयर n मस्ट बी लार्जर देन k. ईच स्लोप कोफिशिएंट b1 is the estimated change in the dependent variable for 1 unit change in the independent variable, keeping everything else constant, which is also called as ceteris paribus. Okay, this is the flow chart of regressions that we have to follow here at level 2. तो रिग्रेशंस रन करने के लिए ये फ्लो चार्ट रहेगा हमारे पास। क्या है? सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? What is the objective? The objective is we want to be able to explain the variation of the dependent variable by using the variations in the independent variable. मतलब y को हम समझाना चाहते हैं with the help of x. उसके लिए हमें एक रिग्रेशन रन करनी है, बट सबसे पहले पूछना है क्या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूअस वेरिएबल है? जो वेरिएबल y है वो कैसा वेरिएबल है? क्या वो कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है? कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है कि वो कोई भी नंबर ले सकता है। फॉर एग्जांपल अगर रेंज बाउंड भी है 5 और 10 के बीच में है तो 5.1, 5.12, 5.57 कोई भी नंबर ले सकता है। बट अगर वो डिस्क्रीट नंबर है कि वो सिर्फ 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर सिर्फ यही नंबर्स ले सकता है तो वो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है। तो उसके लिए रिग्रेशन रन करने का तरीका सब अलग रहेगा। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कल। बट आज हमारी जितनी भी रिग्रेशन है वो कैसी होंगी? कंटिन्यूअस। मतलब हमारा जो वेरिएबल y है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा, उसमें हम रिग्रेशन को रन करेंगे। और सबसे पहले चीज हमें चेक करना पड़ता है कि क्या हमारा जो एरर पोर्शन है, जो कि अनएक्सप्लेन्ड पोर्शन है, क्या वो सही में इज दैट डेटा ट्रूली रैंडम? जो एरर है उसमें कोई एक्सप्लेनेटरी पावर नहीं होनी चाहिए। क्यों? हमने इक्वेशन को 2 हिस्सों में तोड़ा है, एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बची, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको समझाया जा सके। क्योंकि अगर ऐसी चीज कोई बच गई जिसको समझाया जा सकता है, उसका मतलब क्या है कि हमारी इक्वेशन में कोई ना कोई गलती है, हमारी इक्वेशन इज नॉट प्रिडिक्टिंग द वेरिएबल्स प्रॉपरली, कोई मिसिंग वेरिएबल है, कोई डेटा ठीक से नहीं लिखा गया है, मतलब कोई एरर है, कोई दिक्कत है इक्वेशन में। तो अगर एरर पोर्शन रैंडम नहीं है तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन कंप्लीट नहीं है। वहां से समझ में आता है कि इक्वेशन को ठीक कैसे करना है। नहीं, कौन सी गलती है वो पता चलेगा। ठीक है, अभी गलतियां कौन कौन सी हो सकती हैं देखते हैं, बट मैंने आपको बता दी सबसे पहले देखना क्या है कि क्या एरर पोर्शन ठीक है कि नहीं।
अब क्या क्या गलतियां आ सकती हैं देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यस, ये देखते हैं. बिकॉज आपके मॉडल में 6 अजम्पशंस हैं. इन 6 अजम्पशंस में से 5 अजम्पशन सारे एरर टर्म पे हैं. पढ़िए जरा. लेट्स रीड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. फर्स्ट, assumptions for a multiple linear regressions are almost the same as that of the simple linear regression. First is that there should be a linear relationship between the dependent and the independent variable. Relationship linear होना बड़ा जरूरी है. Quadratic, cubic, logarithmic, exponential relationships measure नहीं कर रहे हैं हम लोग. हम कैसा relationship measure कर रहे हैं? Linear. अगर आपका order of relationship कुछ और है तो वो relationship हमारे कोर्स में नहीं है. At least उस कोर्स में नहीं है जो हम कर रहे हैं. बट अब डेटा में नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स मेजर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा. आप रोज इस्तेमाल करते हैं. आप जानते हैं जब आप अपना फोन खोलते हैं, फेशियल रिकग्निशन करता है या फिंगरप्रिंट रिकग्निशन करता है. हर बार आप जब फोन में खोलते हैं, उसको खोलने के लिए आपका फोन रिग्रेशन रन करता है, लॉजिट मॉडल रन करता है, चेक करता है कि क्या मैच हो रहा है, मैच होने के चांसेस कितने, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है. अगर वो प्रोबेबिलिटी मैच नहीं करता तो वो नहीं खोलता. अगर उस प्रोबेबिलिटी से ज्यादा आंसर आता है तो मैच करके खोलता है वो, नहीं तो नहीं खोलता. दैट इज हाउ इट वर्क्स. तो आप सोचिए, रिग्रेशन एनालिसिस आप रोज करते हैं विदाउट नोइंग. फॉर एग्जाम्पल, अब इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन का आउटपुट क्या है? ओपन और नॉट ओपन, राइट? It has to have either open, not open. That is the only possible choice. What kind of an output is it? Is it a continuous model? Is it a discrete model? Discrete outcome है, because दो ही outcomes हो सकते हैं. तो कौन सा मॉडल इस्तेमाल होगा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में उसने इनपुट्स क्या डाले? आपका फेशियल रिकग्निशन फोटो लिया होगा. फोटो रिकग्निशन से वो मैच करेगा कि आपके फीचर्स कितने मैच हो रहे हैं. उनको मैच करके देखा कि क्या प्रोबेबिलिटी क्या है उसके कि सेम इंसान है कि नहीं है. एक बेंचमार्क सेट किया होगा, लेट्स से 90%, 95%, 99%. उस बेंचमार्क को अगर मीट हो गया तो भाई मैच कर गया, रिग्रेशन क्वालिफाई हुई, खोल दिया फोन. नहीं तो नहीं हुआ, राइट? हाउ डू यू डिसाइड? इट हैज टू बी मैथमेटिकल, राइट? Because our facial expressions also. मैंने दाढ़ी उगा ली, नहीं मैच कर रहा, बट उसने कहा कि दिस इज नॉट द फीचर दैट मैटर्स, क्योंकि लोगों के फेशियल फीचर चेंज होते रहते हैं. So they said, okay, we will look at the eye, we'll look at this, we'll look at specific things. So वो benchmark fit किए हुए हैं उन लोगों ने, क्योंकि जब आपने पहली बार फोन खरीदा था, उसने आपके 5-6 फोटो ली थी, उन फोटो से मैच कर रहा है वो. Get it? तो ultimately what is happening is running a logistic regression. So and is our facial feature a linear regression? No, it is not a linear regression. It is a multiple regression which is non-linear. So are you using the topic of machine learning and big data? Yes, you are. It's just that you don't get to see the front, the back end side of it. Front end तो आप सब देख रहे हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हो अपने फोन्स पे, अपने मशीन्स पे. So हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं, this is like the basics. रियल वर्ल्ड में अब ये सब इस्तेमाल नहीं होता. अब इससे आगे दुनिया बहुत बढ़ चुकी है, बट जब तक फाउंडेशन बिल्डअप नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए आपको बेसिक्स पढ़ाए जा रहे हैं मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन के, ताकि ये अगर पार्ट क्लियर है तो आप मशीन लर्निंग आगे कर सकते हो, क्योंकि दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द सेम टॉपिक. यही टॉपिक्स मशीन लर्निंग, बिग डेटा में इस्तेमाल होते हैं. इसीलिए आपको लेवल 2 में वो कहते हैं कोडिंग कर लीजिए, पाइथन सीख लीजिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लीजिए, बिकॉज ये सब आपको ऑन द जॉब हेल्प करेंगे फॉर दैट पार्ट. ठीक है? सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इट. सो दिस इज द फाउंडेशन टू योर regression analysis work in the real world. Moving on and talking about the points that I mentioned कि residual को चेक करना है. Residual मतलब क्या होता है? जो रह गया. Residual मतलब जो रह गया. रह गया कौन सा पार्ट है? Error part, जो unexplained part है. Unexplained में आप चेक करिए, ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं. पॉइंट नंबर 2 to पॉइंट नंबर 5. पहला है the assumption of homoscedasticity. Homoscedasticity का मतलब है कि the variance of the residuals is the same across all observations. Error का variance change नहीं कर रहा है. Error का variance constant है. For example, अगर हम ये डेटा देखें, have a look at
दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या नजर आ रहा है आपको? टिल हाफ ऑफ द डेटा सेट यहां तक, और इसके इस लाइन के लेफ्ट में, इस लाइन के राइट में आपको लग रहा है कुछ डिफरेंस हुआ है? इसके बाएं तरफ, लेफ्ट तरफ डेटा जो है वो कॉम्पैक्ट है, स्प्रेड कम है, और राइट साइड पे स्प्रेड ज्यादा है। दिख रहा है आपको? ये डेटा में हेट्रोस्केडास्टिसिटी है। ऐसे लग रहा है कि दो अलग अलग सैंपल हैं। इसके लेफ्ट के साइड रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसके राइट साइड में रिलेशनशिप वीक लग रहा है। लग रहा है कुछ चेंज हो गया है, लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ तो डिफरेंस आया है। इसको हेट्रोस्केडास्टिसिटी कहते हैं। इसमें मतलब है कि कोई तो प्रिडिक्टेबिलिटी है कि ईयर 8 के पहले और ईयर 8 के बाद कुछ तो चेंज आया है जो हमें कैप्चर करना चाहिए। यस, ये अभी मैंने कल ही डाली थी स्लाइड, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये लेवल 1 की बुक की स्लाइड है, जस्ट टू एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी। ठीक है, सो हेट्रोस्केडास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाता है कि एरर टर्म में कॉन्स्टेंसी है कि नहीं है, एरर टर्म की जो वेरिएंस है क्या वो कांस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, डोंट वरी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में या तो कल की क्लास में या मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक सैटरडे क्लास में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ये है कि क्या जो एरर पार्ट है उसमें कोई कोरिलेशन तो नहीं है? क्या आप पिछली एरर देख के बता सकते हैं अगली एरर कहां आने वाली है? फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, ये जो अगर आप डेटा सेट देखेंगे, हैव अ लुक एट दिस डेटा सेट, इसमें आपको नजर आएगा कि एक पैटर्न नजर आ रहा है। यू विल फाइंड के चौथी ऑब्जर्वेशन, जो चौथा क्वार्टर है, हर बार रिग्रेशन लाइन से थोड़ा हटके है। डेटा में कोई एक सीजनैलिटी नजर आ रही है। इंडिया में तीसरे क्वार्टर में नजर आता है ऐसा। थर्ड क्वार्टर हमारा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है मार्च से अप्रैल से मार्च का है, तो हम थर्ड क्वार्टर यूजुअली लास्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को कहते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को हम थर्ड क्वार्टर कहते हैं। तो ये जो थर्ड क्वार्टर है, इसमें हम हमेशा देखते हैं कि कंपनीज के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, खासकर जो सिक्लिकल कंपनीज हैं, जैसे कि पेंट कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, ऑटो कंपनीज हैं, रियल एस्टेट कंपनीज हैं। फेस्टिवल्स जुड़े हुए हैं आपको गाड़ी खरीदने के लिए, सोना खरीदने के लिए, ये खरीदने के लिए, वो खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सब कुछ के इस टाइम पे लेना है, तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू और सेल्स भी बढ़ते हैं और चौथे क्वार्टर में फिर आ जाते हैं। तो क्या दिख रहा है कि एक सिक्लिकलिटी है, एक सीजनैलिटी है। तो इस सीजनैलिटी डेटा को कैप्चर करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। दैट इज नॉट द पॉइंट। वो सी हमारा यहां पर पॉइंट ये नहीं कि मैनेजमेंट क्या चाहता है, हमारा है कि ये डेटा में पैटर्न नजर आ रहा है। एरर रैंडम नहीं है, एरर में एक पैटर्न नजर आ रहा है, उस पैटर्न को कैप्चर करना जरूरी है। What was the basic point did I say? Analyze the residuals. Find out कि क्या डेटा में कुछ रह गया, एरर में कुछ रह तो नहीं गया समझाने के लिए। अगर रह गया है तो कैप्चर करिए उसको। ठीक है, एरर नॉर्मल होनी चाहिए, एरर में डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए। छोटी एरर ज्यादा फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, बड़ी एरर लेस फ्रीक्वेंट होनी चाहिए। एंड लास्टली एक इशू है मल्टी कोलिनियरिटी का, ये नहीं होना चाहिए, विच इज कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होने चाहिए वो ट्रूली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। x1, x2, x3 आपस में रिलेटेड ना हो। ऐसा ना हो कि x1 और x2 एक दूसरे के रिलेशनशिप में हो। अगर वो है तो फिर भी x1, x2 का काम क्या है? एक होना चाहिए उसमें से इक्वेशन में। So these are some of the assumptions, and if these assumptions are violated, then your regression needs to be corrected before you can move to the next step. तो चेक करिए यहां पे क्या है कि analyze the residuals, are the assumptions satisfied? If no, adjust the model, and adjust the model, re-estimate। मतलब इसके आगे आप बढ़ ही नहीं सकते, इंटरप्रिटेशन नहीं की जा सकती जब तक assumptions ठीक से बैठ नहीं रहे। Once the assumptions are fit,
देन यू चेक कि क्या मॉडल सही है, सिग्निफिकेंट है, क्या ये बेस्ट मॉडल है, फिर प्रिडिक्शन करिए। But how do you address when you found that? करेंगे सब करेंगे आपके लिए, वी विल डू ऑल ऑफ दैट, बट एटलीस्ट हम समझ लें प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम एक रिग्रेशन रन करते हैं। आपके लिए मैं डेटा लेके आया हूं, सो वी विल रन रिग्रेशंस। तो हमारे पास ये डेटा है, I have got data for Sensex, Reliance, Infosys, SBI, Gold, and I have got data from 2001 almost till the point of 2025, January 25 तक का डेटा है हमारे पास, डेली डेटा है, ठीक है। तो एक रिग्रेशन रन करते हैं, और रिग्रेशन हम ये एक रन करेंगे, लेट्स रन द रिग्रेशन, जहां पे इक्वेशन लिख लेते हैं, CAPM की रिग्रेशन रन करें, राइट, जो हमने मार्केट मॉडल की रिग्रेशन थी। Returns on Reliance is equal to B0 plus B1 returns on Sensex plus the error term, ठीक है। ये रिग्रेशन रन करते हैं, ठीक है। तो द वे टू रन द रिग्रेशन इन एक्सेल, ये एक टूल है जहां पर डेटा पे क्लिक करें, एक डेटा एनालिसिस का टूल आता है, वी क्लिक ऑन दैट एंड वी गेट दिस ऑप्शन इन your Excel called as regressions, ठीक है। we run this regression, we run this and एक डायलॉग बॉक्स खुल रहा है जिसमें पूछता है what is the y variable, x variable and the rest of the things। हमें बाकी सब नहीं चाहिए, तो हमने y variable क्या चूज करना है, रिलायंस का, तो हमने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया, तो उसको मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। फिर मेरे को x का वेरिएबल चूज करना है, तो x का वेरिएबल सेंसेक्स है और सेंसेक्स को भी चूज कर लिया, ठीक है। मुझे रेजिडुअल्स की वैल्यूज मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि रेजिडुअल कैसे कैलकुलेट होती हैं, ऑल्दो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज बहुत सारा डेटा सेट है, करीब 6000 ऑब्जर्वेशंस है, तो 5 सेकंड असर लगाएगा कैलकुलेट करने में, तो कोई बात नहीं, वी वांट टू कैलकुलेट दैट एंड सी हाउ दैट अराइजेस। तो विल क्लिक ऑन ओके। अब जो आउटपुट आएगा, अगर आपने आउटपुट इंटरप्रेट कर लिया तो आपका लेवल 1 और काफी सारा लेवल 2 का जितना भी इंटरप्रिटेशन है काफी सारा कवर हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स use that. So give it a couple of seconds, थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर ढीला है, so it takes a few seconds to calculate that. Right, there we go. So the output is here. I will make the data look a little more neater. तो इसको हम होम पे क्लिक करके हर नंबर को 2 डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और ये आपका आउटपुट आ जाता है, ठीक है। अब ये आउटपुट आया है, इतना आउटपुट है, ठीक है। अब 4 टेबल्स आए हैं हमारे पास। सबसे पहले है रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद नीचे आया है अनोवा टेबल, फिर ये आया है इक्वेशन जो आई है, उसके नीचे रेजिडुअल आउटपुट, ठीक है। ये 4 टेबल आए हैं, हम चारों टेबल्स को इंटरप्रेट करेंगे एक एक करके। व्हाट इज मल्टीपल आर? मल्टीपल आर इज द कोरिलेशन बिटवीन the actual value of y and the predicted value of y, okay। So what is it? It is the correlation between the actual value of y and the predicted value of y। ये predicted value कैसे निकाली होगी उसने? predicted value कहां से आती है? estimated value estimate कैसे किया होगा? उसने regression line निकाली, रिग्रेशन लाइन निकाली। रिग्रेशन लाइन कैसे निकाली, चलो वो देखते हैं एक सेकंड। एक काम करते हैं, ये डेटा है आपके पास, है ना, ये डेटा है, इसमें करते हैं स्कैटर प्लॉट डालते हैं। ये स्कैटर प्लॉट आ गया। स्कैटर प्लॉट में हमें ये लाइंस नहीं चाहिए, हमने स्कैटर प्लॉट पे राइट क्लिक करके ट्रेंड लाइन डाली। ट्रेंड लाइन में लीनियर चूज करते हैं और एंटर दबा देते हैं, ये होती है रिग्रेशन लाइन। इसको कहते हैं रिग्रेशन लाइन। पूरे डेटा सेट में उसने एक मीन लाइन डाल दी, दिस लाइन इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन लाइन, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है वो यहां पे दी हुई है। विल कम टू दिस डेटा, ये रहा डेटा, जहां पर आपका इंटरसेप्ट क्या है 0.00 और स्लोप क्या है 1.05 है, ठीक है। तो अब इस रिग्रेशन से उसने क्या किया, उसने एक एक डेटा पॉइंट उठाया सेंसेक्स का, उससे एस्टिमेट किया कि रिलायंस का क्या वैल्यू होगा, कितनी ऑब्जर्वेशंस है 6009, तो उसने वो 6009 बार किया होगा और 6009 बार करके उसने ये प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का डेटा निकाला है। नोटिस करिए कितने ऐसे ऑब्जर्वेशंस निकाले उसने,
6009 बार उसने कैलकुलेशन करी और हर बार कैलकुलेट करने के बाद उसने अब इस कॉलम और रिलायंस का जो एक्चुअल डेटा होगा उसका उसने कोरिलेशन निकाला. ठीक है. सो ये क्या कैलकुलेटेड है यहां पर? व्हाट इज दिस नंबर? 0.64. And what is 0.64? It is the correlation between the actual value of y and the predicted value of y. How was the value of y predicted? By putting in the values of x in the regression equation. How do you interpret that 0.64? I don't know. There is no interpretation. It is 0.64. High or no, I don't care. It is a positive relationship. It is reasonably high because correlation ranges between +1 to -1. It is reasonably okay. How do you interpret it? You take the square. What is this? This is the square of multiple r. How do you interpret it? How do you interpret this data? 41% of the variation in Reliance is explained by the variations in Sensex. This is how you interpret this. But then the correlation should be with Sensex, right? But instead it was correlation with predicted value of y. इस इक्वेशन में हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे? तो जो कोरिलेशन सेंसेक्स का रिलायंस के साथ होगा वही रिलेशनशिप तो सेंसेक्स का उसके प्रेडिक्टेड वैल्यू के साथ होगा, है ना. यहां पर मैंने सेंसेक्स की वैल्यू निकाल दी. आप इसको वेरिएशंस इन सेंसेक्स की वजह आप कहने के बजाय आप कह सकते थे वेरिएशंस इन द प्रेडिक्टेड वैल्यूज, है ना. तो एक ही बात है बिकॉज यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही था. ठीक है. नेक्स्ट नोटिस करिएगा कि ये नंबर इससे छोटा है. आपको लग रहा होगा ये सेम नंबर है बट थोड़ा सा ऊपर देखिएगा, यहां पे नजर यहां पे लगेगा ऊपर, देखिएगा नंबर सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है. राइट, डिफरेंट है ना. और ये नंबर छोटा है. ठीक है. क्यों छोटा है? इसका नाम क्या है? एडजस्टेड आर स्क्वायर. क्या चीज होती है एडजस्टेड आर स्क्वायर? हम चाहते हैं कि आप जो मॉडल बनाएं, ध्यान से सुनिएगा, हम जो चाहते हैं कि आप जो मॉडल बनाएं वो एक टाइट मॉडल होना चाहिए, छोटा मॉडल होना चाहिए. पार्सिमोनियस का मतलब है कि वो ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कुछ हो. ऐसा नहीं करें आपके एक चीज समझाने के लिए आप 50 चीजें मुझे बता दें. ऐसा कभी आपने कोई सुना है कि मतलब कोई रिपोर्ट बना रहा था, उसने कहा कि यार बताओ इसको कैसे समझाएं. उसने इतना सारा डेटा लेके आया, उसने कहा सर इसको समझाने के लिए ये सब. उसने कहा लाइफ आसान कर रहे हो मुश्किल कर रहे हो? यू मेड माई लाइफ हार्डर बिकॉज आपने समझाया नहीं, आपने सब कुछ उठा के दे दिया. मुझे 2 चीजें बताओ, टेल मी 2-3 थिंग्स दैट आर रेलेवेंट, बाकी मैं देख लूंगा. सो व्हाट यू नीड इज अ मॉडल विच इज टेलिंग यू द मेन वेरिएबल्स. सो व्हाट डज एडजस्टेड आर स्क्वायर डू? Adjusted R square punishes the analyst when he adds new independent variables. Yes, it punishes the analyst when he adds new independent variables. We decide to add a new independent variable into the regression equation only when adjusted R square goes up. The use of adjusted R square can only be used when comparing two regressions, when comparing at least two regression equations, regression outputs. इसका मतलब है कि अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता. इस नंबर का आपके लिए कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है अभी फिलहाल के लिए. So this has no meaning as yet, as of yet. Okay? जब हम कोई और regression equation run करेंगे तो शायद उसमें कोई meaning आए. What is standard error? This is the average error in the data. Or you can say this is the variance, or you can say this is the standard deviation. The standard
deviation of the total data. ठीक है. एंड नेक्स्ट तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 6009. ठीक है, दिस इज द आउटपुट. फिर क्या किया हमने? नेक्स्ट अनोवा. अनोवा स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. किसका वेरिएंस? किसके वेरिएंस को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो? एक ही तो था, डिपेंडेंट वेरिएबल. उस डिपेंडेंट वेरिएबल का जो टोटल डेटा है, सॉरी, उस डिपेंडेंट वेरिएबल का जो टोटल डेटा है वो यहां पे लिखा हुआ है. ये 3.05 क्या है यहां पर? SS स्टैंड्स फॉर सम ऑफ स्क्वायर्स. याद है हमने फॉर्मूला लिखा था y माइनस y बार होल स्क्वायर. उसने कैलकुलेट किया, कितना आ गया? 3.05. याद है आपने लेवल 1 में जब आप वेरिएंस कैलकुलेट करते थे तो वेरिएंस का डिनोमिनेटर क्या रखते थे? n-1. यहां पे देखिए नंबर क्या है? n-1. ठीक है. अगर मैं इसको डिवाइड करूं, यहां से इसको डिवाइड कर दूं, तो ये जो नंबर आ रहा है ये पता क्या है? ये वेरिएंस है. और अगर मैं इसका अंडर रूट निकाल दूं तो ये नंबर गैस करिए क्या है? आपने देखा ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द टोटल डेटा. ये जो आपने अभी कैलकुलेट किया था 0.02, और यही तो 0.02 है. ये क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डेटा. तो स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ योर सैंपल डेटा. एफ अभी करते हैं, अभी एफ पे नहीं आए हम लोग. सर वो रिग्रेशन में 1 लिखा है, वो क्या? कहां पे? अभी करते हैं, अभी करते हैं, एक एक करते हैं. ये पार्ट क्लियर है? इतना पार्ट समझ में आ गया आपको? ये पार्ट, यस. ये टोटल डेटा था आपका. अब इस टोटल डेटा को उसने तोड़ा दो में. टोटल वेरिएंस को दो हिस्सों में तोड़ा गया. किस किस में? एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड. ये पोर्शन कौन सा है? एक्सप्लेन्ड. और ये पोर्शन कौन सा है? अनएक्सप्लेन्ड पोर्शन है. रिग्रेशन को एक्सप्लेन्ड पोर्शन कहते हैं और रेसिडुअल को अनएक्सप्लेन्ड पोर्शन कहते हैं. आपके एक्सप्लेन्ड पोर्शन में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे? एक. आपके रिग्रेशन पोर्शन में कितने एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे? एक. कितने डेटा पॉइंट्स रह गए एरर टर्म के लिए? n माइनस k माइनस 1. तो ये रहा n माइनस k माइनस 1, एंड दिस हियर इज k, and this is n minus 1. ये रहे वैल्यूज. n minus 1 क्या हुआ? n is number of observations. n minus 1 किसका डिनोमिनेटर है? वेरिएंस का. ठीक है. अब अगर आपको रिग्रेशन डेटा सेट का डिनोमिनेटर देखना है कि उसका वेरिएंस का कितना, अगर आपको चाहिए डिनोमिनेटर, उसमें कितने आएंगे? सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. एरर पोर्शन के लिए कितने रह गए? n ऑब्जर्वेशंस, के यहां पे इस्तेमाल हो गए, और 1 आपका जो मीन वैल्यू है उसके इस्तेमाल हो गया. तो ये आपके नंबर्स आ गए यहां पर. ये पोर्शन क्या है? इन दोनों को ऐड करिए जरा. 3.05 आ रहा है क्योंकि पहला पोर्शन क्या है? 1.25 क्या है? इट इज द एक्सप्लेन्ड पोर्शन वेरिएशन. एंड ये पोर्शन क्या है? द अनएक्सप्लेन्ड पोर्शन. अच्छा, आर स्क्वायर आपको आता है कैलकुलेट करना. आर स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होता है? एक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल. याद है कितना आया था? 41%. लीजिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वेरिएशन हैज बीन एक्सप्लेन्ड? 41%. तो क्या आप अनोवा टेबल से आर स्क्वायर निकाल सकते हैं? आना चाहिए आपको. यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द आर स्क्वायर फ्रॉम द अनोवा टेबल. ठीक है. नेक्स्ट, अब हम आते हैं एफ स्टैटिस्टिक पर. एफ स्टैटिस्टिक बताता है कि क्या हमारी रिग्रेशन में क्या कोई एक भी ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो y को एक्सप्लेन करता है.
हमारे रिग्रेशन इक्वेशन में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है? एक ही था। तो मेरा क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन सुनिए, क्या कोई एक भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? एक ही था, उसी के बारे में चेक हो रहा है। अगर क्या कोई एक भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करता है? तो देयर इज ओनली वन। इफ देयर इज ओनली वन, देन द एफ टेस्ट इज चेकिंग दैट वन, एंड इफ द वैल्यू ऑफ एफ कम्स आउट टू बी हाई, वी prove that yes, since x or the independent variable, in this case at least one independent variable explains the dependent variable. कम से कम एक तो एक्सप्लेन कर रहा है। कौन सा वाला, उसके लिए आपको इंडिविजुअली टी टेस्ट करना जरूरी है। और टी टेस्ट की क्या वैल्यू आ रही है देखिए, 64। और ये टी टेस्ट की वैल्यू कैसे निकाली होगी? आपको बताया था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला याद है? ऑब्जर्वेशन माइनस हाइपोथेसाइज। हाइपोथेसाइज वैल्यू जनरली 0 होती है, तो -0 divided by standard error. No points for guessing. This number is going to come out to be 64.56. And if this number is very high, which it is, क्योंकि आपकी जो critical values होती थी वो क्या थी? 1.96, 2.58, 2.33, मतलब ये तो 65 है, ये तो बहुत significant है। तो कह रहा relationship है, solid relationship है। There is definitely a relationship between the two variables. No doubt on that, right? अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन आया। How did you calculate R square from the ANOVA table? We calculated R square from the ANOVA table by dividing the regression sum of squares by the total sum of squares. Because what is R square? R square is the percentage of the total variation that has been explained by the regression equation. So explained upon total is what is the equation. You calculated the f number. आते हैं, M पे भी आते हैं। You calculated the f number by MSR by MS. अच्छा, ये आपको M, अगर M वाला पार्ट है, what is M? We know something. This divided by this, okay? And this divided by this. This is how this was also calculated, अगर चेक करिए, है ना? And finally, how is f calculated? This divided by this. Explained portion upon the error portion. ठीक है? ये आया था नंबर 4168 था, ये नंबर है, ठीक है? So these are the formulas here for this. Yes, we'll talk about them. दिखा दूंगा आपको, सारे फॉर्मूले दिखा दूंगा। Yes. All right. ठीक है? So you got the idea? Sir, so actually what है? It's not that very relevant for when we are doing this one. Correct. Very right. अगर आपके रिग्रेशन इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एफ टेस्ट और टी टेस्ट का आउटपुट सेम होगा, क्योंकि एफ टेस्ट क्या है? सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक साथ चेक करता है। टी टेस्ट इंडिविजुअली चेक करता है, ठीक है? एफ टेस्ट इज अ टीम टेस्ट, टीम में चेक कर रहा है क्या क्या कोई एक भी रेलेवेंट है, और टी टेस्ट इंडिविजुअली टीम के सारे इंडिविजुअल वेरिएबल्स को चेक करता है ये कौन सा वाला सिग्निफिकेंट है। Got it? So when we have more. Then one independent variable, that is when f test will be relevant. Absolutely correct. ठीक है? Okay. एक काम करते हैं, we've taken a longish session. Take a break 10 minutes. Come back in 10 minutes and we'll continue in 1 hour after that again, and we'll try and finish by 12:30. Our plan for today is I want to cover up a little bit here and talk about R square, adjusted R square, show you a bit of scatter plot and adjusted, ये सब बात करेंगे. So we'll try and complete out the first chapter till here. ठीक है? Take a break, come back in 10 minutes and we cover that. ठीक है?